Recording. Okay, we can quickly review. So, in our last class, basically we talk about the data structure, database structure. Means a database structure refer how data is stored, right, and organized and accessed within a database, right? So, it determines the logical design and physical implementation. Uh, we had seen we had covered some of the example also, right? We had uh, explored how we can, use Excel as a database, how we can create multiple tables. We had talked about the column, the record, and the tables, right? Anyone have any questions regarding that? Okay. So, before moving forward, what we can do. Is everyone having the developer account? If no, then you can search developer Salesforce sign up. You can open this link. I'm just going to share this link to everyone in the chat. You can open it. You can fill this form. Okay. First name, last name, email, role, whether developer or architect or anything, company name, country, state, postal code, username, right? And click the agreement, sign me up. It will take some time, 2-3 minutes maximum, and it will create you a developer account. So what it is doing in the back end, as we had also talked about the data center, the racks, right? If you remember, racks, right? So once we create a developer account, it basically allocate one of its server, and each server is having a unique org ID. Okay. So for developer, this is a developer, let's say in their data center, they have allocated some of the server for developer org. Okay. So these are the developer server, let's say in Salesforce. What is means developer server? Okay. So it will allocate you based on your reason. It will allocate a server for you, and it will provide you a org ID. Almost there. Please check your email to verify your account. Let me quickly check my. Hmm, Still, I haven't got any email. It takes time. As I told you that it takes some time. Okay, you will get one email notification there. You will be able to log in. They will provide you a URL. Using that URL, you will be able to access the developer org. What is org? Org is nothing but an environment, a server which will be allocated for you. Okay. The same, basically, once you purchase means based on your requirement, you ask Salesforce that I need a CRM software, right? Uh, which can manage my sales uh, flow, right? So Salesforce has a different server for the customer, right? And they will allocate a server, right? Let's say this will be a for enterprise edition. There,
I'll talk about the pricing, the edition, type of org they provide in other class. But uh, like this, they allocate a server for everyone. Okay, so we are currently requesting Salesforce that I need a developer org. Please allocate me. These are the information, the form which we have filled. Everyone is filling that form. Anyone is facing any issue, let me know. You have to Eh, create the developer or because you have to practice uh, whatever we cover in our class, you have to practice in your developer or that's why it is needed. Okay, me quickly check again. So because it is taking time, so what I can do, I'm going to access another uh, developer org which I have already created in past. For so to access the developer org, this URL would be needed, login.salesforce.com. You have to familiar with two URLs. First is login.salesforce.com, login.salesforce.com, and the second one is test.salesforce.com. Okay, so using login.salesforce.com, you will be able to access developer or and production or production or production or means live instance or org for client. Okay. Uh, test.salesforce.com. Choosing this URL, you will be able to access sandbox. Sandbox org. So sandbox is nothing but a development org environment instance. So once you start working on any live project, then you will get to know that in production org, you can't make the changes directly in production org. For an example, means you can't do the development there. What kind of development? Like you can't create a class, okay? You can't make any changes in the class. Why? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑर्ग होता है, जो लाइव इंस्टेंस होता है, ठीक है, उसको कस्टमर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड लेट्स से इफ यू मेक एनी चेंजेस एंड द कोड स्टार्ट ब्रेकिंग, ठीक है, आपने कुछ चेंजेस कर दिया, कुछ भी क्लास में ऐड कर दिया और उसकी वजह से एक्सेप्शन आना शुरू हो गया, वो पूरा का पूरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा। लेट्स से कि फॉर एन एग्जांपल अगर कस्टमर जो है, जैसे पेटीएम पेटीएम भी यूज करती है सेल्स फोर्स, है ना, एंड पेटीएम में अगर कोई साइन अप करता है, उस यूजर का इंफॉर्मेशन सेल्स फोर्स में स्टोर होता है। सो जो फ्लो है जिससे कि यूजर का इंफॉर्मेशन सेल्सफोर्स में स्टोर हो रहा हो और वो जिस क्लास जिस मेथड के थ्रू हो रहा है,
डेवलपर ने कुछ चेंजेस कर दिया उस क्लास में डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्शन, सो वो फ्लो ब्रेक होगा एंड यूजर्स है जो साइन अप नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, राइट? सो साइन अप प्रोसेस विल बी कंप्लीटली ब्रेक डाउन एंड पेटीएम विल फेस ह्यूज लॉस, है ना? बहुत सारे ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हुआ, राइट? एक अनदर एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे अगर कोई हॉस्पिटल है ना? हॉस्पिटल में लेट्स से ऑपरेशंस को ट्रैक करने के लिए, उसको शेड्यूल करने के लिए कोई फ्लो बना हुआ है, ठीक है? एंड वहां पे अगर डेवलपर ने कुछ चेंजेस करा और वहां पे प्रोडक्शन ब्रेक हो रखा है, तो ये ऑपरेशन का जो टाइम शेड्यूल है वो ऊपर नीचे हो सकता है, वो बहुत क्रिटिकल होता है, तो ह्यूज लॉस फेस कर सकते हैं क्लाइंट। सो लाइव इंस्टेंस में कभी भी सेल्सफोर्स अलाउ नहीं करता है कि आप चेंजेस करो, ठीक है? एडमिन चेंजेस कर सकते हो, बट वो भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आप कोई भी चेंजेस करोगे वो आप कहाँ करोगे? सैंडबॉक्स में करोगे, ठीक है? एंड उसको हम लोग मूव करते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है? डेवलपर और हमारा डेवलपमेंट सीखने के लिए एंड ऑल, यहाँ पे सारा कुछ हम लोग सीख सकते हैं, ये एक्सपायर नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी क्लाइंट को सीआरएम सॉफ्टवेयर चाहिए सेल्सफोर्स का, वो साइन अप करते हैं, इट विल बी वैलिड फॉर 30 डेज, एंड बिफोर 30 डेज आपको परचेज करना रहता है, ठीक है? वंस यू परचेज, देन वो इंस्टेंस आपको एलोकेट हो गया, वो एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है? फ्रॉम प्रोडक्शन और यू कैन क्रिएट सैंडबॉक्सेस, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सैंडबॉक्सेस। 4 तरह के सैंडबॉक्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? वो भी आगे कवर करेंगे, जिसमें कि फुल सैंडबॉक्स होता है, एग्जैक्ट रेप्लिका होता है, ठीक है? पार्शियल कॉपी सैंडबॉक्स होता है, डेवलपर होता है एंड डेवलपर प्रो होता है। चलो अभी कवर कर लेता हूँ। फुल सैंडबॉक्स, पार्शियल कॉपी, डेवलपर एंड डेवलपर प्रो, ठीक है? डिफरेंसेस क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसे। फुल सैंडबॉक्स एग्जैक्ट रेप्लिका होता है, मींस डेटा एंड मेटा डेटा, डेटा एंड मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? जब हम लोग अभी और एक्सेस करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से इसको, मेटा डेटा को। बेसिकली जो भी हमारा स्कीमा होता है, जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कुछ भी कॉन्फ़िगर करेंगे वहाँ पे, उन सबका इंफॉर्मेशन मेटा डेटा में स्टोर्ड रहता है, ठीक है? एंड डेटा मीन्स रिकॉर्ड, ठीक है? इन सब में मेजर डिफरेंस क्या होता है ना, पहला तो ये फुल सैंडबॉक्स जो है उसके लिए परचेज करना पड़ता है, समथिंग चार्ज करता है सेल्स फोर्स, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्ग, दे चार्ज आई थिंक $5,000 पर ईयर, they charge for unlimited edition, $5,000 for how many copies? I don't know. I don't remember. I don't think we can get that information from Google also. Full copy sandbox Salesforce pricing. Let's see if we can get here. डेवलपर सैंडबॉक्स इट इज फ्री, है ना? एक लिमिटेड कॉपी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फ्री, वहां पे आपको दिखाएगा। इफ आई कैन शो यू इन द लाइव इंस्टेंस, लेट मी शो यू। ये एक लाइव इंस्टेंस है, ओके? यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ सैंडबॉक्स का, यहाँ से पता चलेगा। सैंडबॉक्स, सैंडबॉक्सेस आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप
देख सकते हो चार ऑप्शन है। डेवलपर, है ना, 30 लाइसेंसेस, 30 डेवलपर और हम लोग बना सकते हैं। डेवलपर प्रो भी एक लाइसेंस मिला हुआ है, एक पार्शियल कॉपी का भी, एंड इसका है नहीं क्योंकि जीरो लाइसेंस इज इन यूज, राइट। ठीक है। नाउ यहाँ से हम लोग टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, कौन कौन से आप ऑब्जेक्ट को या क्या क्या कॉपी करना चाहते हो आप यहाँ पे। हेयर यू कैन सी न्यू सैंडबॉक्स टेम्पलेट, इसमें आप टेम्पलेट का नाम डालोगे कुछ भी, लेट्स से पार्शियल कॉपी टेम्पलेट। ओके, हेयर वी हैव ऑल द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का को भी अभी कवर करना बाकी है हमारे क्लास में, वो हम लोग कवर करेंगे। मैं चाह रहा था एक बार हम लोग सारे डेवलपर अकाउंट क्रिएट कर लें एंड देन उसके बाद ये सारा कुछ कवर करता मैं, बट कोई नहीं। ठीक है। पार्शियल कॉपी का टेम्पलेट हम लोगों ने बना दिया। मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स है जो कर लिए सिलेक्ट। अब ये पार्शियल कॉपी टेम्पलेट ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, इसको यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सैंडबॉक्स क्रिएशन। ठीक है। अब सैंडबॉक्स क्रिएट कैसे करते हैं, उसका ऑप्शन यहाँ पे सैंडबॉक्सेस में आता है, राइट। न्यू सैंडबॉक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे लेट्स से देव किस तरह का सैंडबॉक्स हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, एंड यहाँ पे आप उसके डिफरेंसेस देख सकते हो। चार सैंडबॉक्स हैं, चार तरह के सैंडबॉक्स हैं। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, रिफ्रेश इंटरवल 1 डे, रिफ्रेश इंटरवल 1 डे। पार्शियल कॉपी का 5 डेज है और इसका 29 डे। मतलब आप जो भी सैंडबॉक्स क्रिएट करोगे उसको एक दिन के बाद आप उसको रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है। एंड कैपेसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 200 MB का स्टोरेज आपको मिलेगा। इसमें 1 GB का, इसमें 5 GB का, और इसमें होता है सेम एज रिसोर्स। सेम एज रिसोर्स मीन्स जो भी आपका ऑर्ग है उसको जितना स्पेस एलोकेटेड है वो मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था एग्जैक्ट रेप्लिका होता है फुल सैंडबॉक्स। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें क्या इंक्लूड किया जा सकता है, कॉन्फ़िगरेशन एपेक्स एंड मेटा डेटा एंड ऑल यूजर। यहाँ डेवलपर एंड डेवलपर प्रो में कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी का है 1 GB। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ना इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, दैट्स वाई ये हमें लगता है छोटा सा चीज है, हाँ चलो ठीक है बाद में रिकॉल कर लेंगे, बट बेटर है कि साथ के साथ आप कवर करते जाओ। ठीक है। ये क्वेश्चंस में पूछते हैं कितने तरह के सैंडबॉक्स होते हैं, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। डेवलपर एंड डेवलपर प्रो में कोई डिफरेंस नहीं होता है एक्सेप्ट कैपेसिटी का। ठीक है। एंड डेवलपर एंड पार्शियल कॉपी में देखें तो इसमें बोल रहा है ना, पार्शियल कॉपी में सम ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं। जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उस टाइम वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। सैंडबॉक्स टेम्पलेट सपोर्ट करता है ये, राइट। इसमें तो फुल कॉपी में तो एग्जैक्ट रेप्लिका होता है, तो हिस्ट्री हो या चैटर रिलेटेड डेटा हो या सारे रिकॉर्ड्स हैं सब कुछ ये सपोर्ट करता है। फुल कॉपी ये पेड होता है बेसिकली, इसके लिए चार्ज करते हैं। एंड प्राइसिंग का अगर हम लोग यहाँ पे देखें, फुल कॉपी 30% ऑफ नेट स्पेंड। इफ यू सी यहाँ पे भी एग्जैक्ट प्राइसिंग मेंशन नहीं है, राइट। सो 30% ऑफ नेट स्पेंड फुल कॉपी सैंडबॉक्स। वही डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ऑर्ग ले रहे हो, लाइसेंस आपका किस तरह का है उस ऑर्ग का। ठीक है। डिपेंड करता है तो उतना आपको चार्ज करते हैं वो। ठीक है। 30% ऑफ नेट स्पेंड काफी कॉस्टली हो गया।
सो मैंने जिस क्लाइंट के लिए देखा था, और क्योंकि मुझे पता था कि वो कितना पे कर रहे हैं, तो $5,000 है जो पर ईयर वो पे कर रहे थे। सो आप लगा सकते हो कि अप्रॉक्स में $20,000 वो सेल्स फोर्स को पे कर रहे होंगे उनके अनलिमिटेड एडिशन के लिए। ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अभी देखते हैं डेवलपर ऑर्ग। यस, मी 1 मिनट। डेवलपर ऑर्ग रेडी हो गया है। मी रीशेयर माई स्क्रीन अगेन। सो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, यू विल गेट वन ईमेल, वेरीफाई योर अकाउंट, राइट। यहाँ पे एक बटन रहेगा, यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई योर अकाउंट, रिसेट पासवर्ड। ओके, then they have a password policy, 8 character, one letter, one number should be there. So I'm just providing a password. Okay, change password. Okay, right. So this is my developer or developer environment. And as I told you that if every org has its org ID, the unique ID. You can see फ्रॉम कंपनी इंफॉर्मेशन, आप यहाँ से देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन आईडी ये है। ये यूनिक आईडी है। किस तरह का है? ऑर्गेनाइजेशन एडिशन क्या है? डेवलपर एडिशन है। इंस्टेंस, ये पॉड आईडी इसको बोलते हैं। इंस्टेंस आईडी या पॉड आईडी, SWE, बेसिकली ये सर्वर को रिप्रेजेंट करता है या डेटा सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कहाँ के डेटा सेंटर का ये सर्वर पे एलोकेट किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप, ओके। सो ये फर्स्ट टाइम होगा आपका। तो लेट्स से कि यहाँ से मैंने वेरीफाई करा और मैं यहाँ पे चला गया, है ना। सेटअप स्क्रीन पे मैं चला गया। अब यहाँ से क्या क्या होता है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होगे क्विक फाइंड बॉक्स, एंड एक यहाँ पे है क्विक फाइंड बॉक्स। ठीक है, दो है जहाँ पे सर्च का आइकन है। ये दो जगह से हम लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है। क्या ये जो सर्च है ये सेटअप का सर्च है? मींस आपको कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ भी सर्च करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे करा ना कंपनी, है ना, कंपनी करा सर्च तो कंपनी इंफॉर्मेशन आया, है ना। सेम अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसका स्टोरेज यूसेज के बारे में पता चले, तो यहाँ पे मैंने स्टोर सर्च करा, स्टोरेज यूसेज आया। यहाँ पे वैसे सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए ये सेटिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे आप देखोगे सेटअप होम है, राइट। ये सेटअप होम है, सर्विस सेटअप असिस्टेंस, रिलीज अपडेट, हाइपर फोर्स असिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस हैं सेटअप के, लाइक यूजर। ठीक है, यहाँ पे आपका परमिशन सेट, ग्रुप परमिशन, ये सारा कुछ कवर होगा गोइंग फॉरवर्ड। यूजर्स, कितने यूजर हैं, क्योंकि मैंने साइन अप करा है ना, अभी। और तो अभी एक यूजर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये यूजर्स, बाकी जो यूजर्स है वो सेल्सफोर्स क्रिएट करके देता है, जैसे इंटीग्रेशन यूजर एक आपको क्रिएटेड मिलेगा। ठीक है। सेम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में डेटा है, इसमें बिग ऑब्जेक्ट और बाकी सारे ऑप्शंस हैं, है ना। मास डिलीट, रिकॉर्ड, डुप्लीकेट मैनेजमेंट, डुप्लीकेट रूल्स वगैरह हम लोग उसमें करेंगे, ईमेल। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं मतलब यहाँ पे। और ये प्लेटफॉर्म टूल हो गया जिसमें ऐप, हेरोकू,
ऑल अदर ऑप्शंस आर देयर, लाइक ऐप ऐप मैनेजर, यहाँ से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देन सेटिंग है। ठीक है। तो जब धीरे धीरे आप यूज करोगे, आप फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है। क्या करना है, सो अब बैक टू द कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन अभी हम लोगों ने पूरा कवर नहीं करा है, एक बार वो कर लेते हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन में ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कौन कांटेक्ट है, प्राइमरी कांटेक्ट, है ना, कब स्टार्ट हुआ, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ना। यूज डेटा स्पेस इतना केबी यूज हुआ है, फाइल स्पेस इतना ही यूज हुआ है, अभी तो जस्ट क्रिएट ही हुआ है, राइट। ओके। यहाँ पे यूजर लाइसेंसेस, सो यहाँ पे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर लाइसेंसेस, क्योंकि ये डेवलपर ऑर्ग है। सो डेवलपर ऑर्ग में आपको दो यूजर लाइसेंस मिलते हैं सेल्सफोर्स का, मींस दो एडमिन का आप बना सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल का सेल्सफोर्स लाइसेंस जिस भी यूजर के लिए जरूरत रहता है आप दो ही बना सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट एक बना हुआ है जिससे मैं लॉग्ड इन हूँ। ठीक है। एंड ये अदर लाइसेंसेस हैं, ये परमिशन सेट्स हैं। यहाँ पे परमिशन सेट क्या होता है, ये जब हम लोग यूजर्स रोल ये सब कवर कर रहे होंगे वहां पे मिलेगा आपको। ठीक है। सो ये बेसिक हो गया। देन मैंने क्या करा था, यहाँ से स्टोरेज, है ना, स्टोरेज यूसेज, कितना स्टोरेज है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। 5 MB डेटा स्टोरेज का लिमिट है, फाइल स्टोरेज का 20 MB है, एंड बिग ऑब्जेक्ट स्टोरेज का 10 लाख, राइट, इतना यूज हो रखा है। कौन सा टेबल, कितना रिकॉर्ड और कितना स्टोरेज कर रखा है, कितना परसेंट वो ऑक्युपाई कर रखा है, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। फाइल से रिलेटेड कि कितने फोटोज हैं, कंटेंट बॉडीज हैं, वो यहाँ पे। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? No, sir. सबने डेवलपर अकाउंट क्रिएट कर लिया है? Yes, sir. Yes. ओके। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे ओके, और क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले ये जो यहाँ पे राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर पे व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक तो यूजर, इस यूजर के बारे में आप ओपन कर सकते हो। वहां पे मैंने क्लिक करा, है ना। सो ये यूजर करेंट लॉग्ड इन यूजर है ये, राइट। उसका इंफॉर्मेशन यहाँ है, व्यू यूजर डिटेल, यहाँ पे एक बटन था, फिर से मैं दिखा देता हूँ। सॉरी, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर गया, बट मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है एंड यूजर डिटेल का ऑप्शन है। जब आप ये यूजर डिटेल बटन पे आप क्लिक करोगे, देन ये यूजर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है। यूजर कहाँ से ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। सेटअप ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में यूजर आया, यूजर पे जाओगे। ठीक है। यूजर को जब ओपन करोगे, देन यहाँ से यूजर पे आप क्लिक करोगे, फिर वो यूजर इंफॉर्मेशन सेम पेज यहाँ पे ओपन होगा। आपने देखा कि मैंने जब साइन अप करा है, देन उसके बाद मैं ब्राउजर पे ही हूँ, है ना। ऑन क्लिक में सारे ऑप्शंस, मुझे सारे ऑप्शंस है जो ऑन क्लिक पे ही मुझे मिल रहे हैं, है ना। सो क्यों, क्योंकि ये क्लाउड सीआरएम है, राइट। एंड जो हम लोगों ने आस पास एंड सास के बारे में पढ़ा था, तो ये एक सॉफ्टवेयर है ना, सास। एंड बेसिकली इसमें ये प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रखा है जिससे कि हम लोग डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, है ना। ये सेटअप में हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी है, राइट, जिसको force.com हम लोग बोलते हैं, है ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए आप, कि कभी भी इन फ्यूचर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे यूजर का इंफॉर्मेशन आया। ठीक है।
यहाँ से आप जो भी बटन है, यहाँ पे सारा ऑप्शंस है, आप खुद से इसको एक्सप्लोर करना, खुद से। ठीक है, कहीं पे कुछ क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके कवर कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि बटन है, एडिट, एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूजर का कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें चेंज करना हो हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे रोल है, रोल क्या होता है, लाइसेंस क्या होता है, ठीक है, प्रोफाइल्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ आगे कवर होगा। ये एक्टिव मीन्स चेक्ड है, इट मीन्स कि एक्टिव यूजर है। किसी को डीएक्टिवेट करना हो हम लोग ये चेक बॉक्स अनचेक कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है, इफ यू कैन सी। ठीक है, जैसे यहाँ पे है मार्केटिंग यूजर। ठीक है, मार्केटिंग यूजर का क्या नीड होता है, मार्केटिंग यूजर जो चेक बॉक्स है, अगर हम लोग इसको अनचेक कर देंगे तो क्या होगा, नॉलेज यूजर का कब रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे चेक बॉक्सेस का आप अपने एंड से भी थोड़ा एक्सप्लोर करना, है ना। मेलिंग एड्रेस, ये सारा तो एक फॉर्म है यूजर से रिलेटेड जिसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टाइम जोन आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एशिया कोलकाता और इंग्लिश इंडिया एंड लैंग्वेज ही है, जबकि जब मैंने साइन अप करा था ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दिया था, बट मैंने वहाँ पे अपना पिन कोड फिल करा था। उसके बेसिस पे इसने टाइम जोन ऑटोमेटिकली इसने अपडेट कर रखा है लोकल सेटिंग में। ठीक है, फेडरेशन आईडी जो यूज होता है सिंगल साइन ऑन में, मींस दो दो सिस्टम है, एक सेल्सफोर्स है, एक और सिस्टम है, लेट से एक वेबसाइट है। ठीक है, एंड वेबसाइट जो है किसी और प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया गया है। ठीक है, लेट से सी शार्प पे किया गया है। ठीक है, उसका डेटाबेस डिफरेंट होगा, उसका वहाँ पे ऑथेंटिकेशन डिफरेंट होगा, बट यूजिंग सिंगल साइन ऑन व्हाट वी कैन डू। सिंगल साइन ऑन नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिंगल साइन ऑन, एक जगह आप साइन साइन इन करोगे, दूसरे सर्वर पे भी वो आपका सेशन क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रूवर सेटिंग है ऑप्शन में। आप देख रहे हो कि अगर आप इस यूजर का कोई मैनेजर है, लेट्स से रिपोर्टिंग मैनेजर है। ठीक है, तो यहाँ पे उस यूजर को, ये लुकअप है, यूजर का लुकअप है। लुकअप क्या होता है, अभी के लिए ये समझ लो कि जहाँ पे भी ये मैग्नीफाइंग ग्लास आपको दिखे, ठीक है, वो लुकअप होता है। अभी जब हम लोग रिलेशनल डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बट जहाँ पे भी मैग्नीफाइंग ग्लास मींस ये सर्च कर रहा है। ठीक है, ये सर्च कर रहा है डेटाबेस से, तो ये यूजर का लुकअप है। तो अगर कोई रिपोर्टिंग मैनेजर है तो वो डेलीगेटेड अप्रूवर है, उस यूजर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है रिसीव अप्रूवल रिक्वेस्ट ईमेल, इसमें चार ऑप्शन है। ओनली इफ आई एम अप्रूवर, रिसीव अप्रूवल रिक्वेस्ट ईमेल मीन्स इस यूजर को अप्रूवल रिक्वेस्ट का ईमेल कब जाना चाहिए। ठीक है, इफ आई एम एन अप्रूवर और डेलीगेटेड अप्रूवर, if I am approver, only if I am a delegated approver and never means अगर मैं अप्रूवर हूँ या डेलीगेटेड अप्रूवर हूँ किसी भी यूजर का, एंड वहाँ पे अप्रूवल, अप्रूवल रिक्वेस्ट ईमेल नाम से अभी समझ लो, बाकी हमारे जो कोर्स है उसमें अप्रूवल प्रोसेस हम लोग कवर करेंगे ही। ठीक है, सो अप्रूवल प्रोसेस एक मल्टीपल स्टेप अप्रूवल है ना, यहाँ पे है वर्कफ्लो एंड अप्रूवल प्रोसेस सी। ठीक है, सो
अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें एक अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो अगर कभी अप्रूवल सबमिट करा गया एंड यू आर रिलेटेड विथ any of this option, ठीक है, you will get one email, approval email. If I select never, I'll not get any approval email. So I'm leaving it whatever the setting, default setting it is there. ठीक है, अभी हमारा क्लास एंड हो रहा है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कनेक्ट करेंगे। अगर कुछ भी लीव का, लेट से मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नोटिस